Hello everyone, welcome to the Daily Drill 85. Today we are going to look at a couple of sets from DILR. And one of these sets is possibly one of the toughest sets ever to have appeared at DCAT. And I know that there is a legend attached to it, right? So javelin throw or a javelin competition is basically the set that we are going to look at. And वो शायद वही सबसे ज़्यादा difficult set था CAT का. So we will try to see if we can understand how to solve it in an easier manner. There is a lot of intuition involved. काफ़ी कम numbers हैं, मतलब numbers दिए हुए but काफ़ी कम calculation बोल सकते हो या reasoning के लिए ना बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं. So let's see what exactly happens in the javelin set. The other set is fairly manageable, but this one is the difficult one. So एक बार set देख लेते हैं. I would suggest that you look at the set in the form of a test. टेस्ट के अंदर देख लेना इफ़ यू कैन वर्क इट आउट, नहीं तो यू कैन मे बी वंस यू आर डन विद द टेस्ट यू कैन हैव अ लुक एट दी सेट ऑन योर ओन एंड ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट इट्स परफेक्टली ओके. देर इज नो पॉइंट स्ट्रगलिंग विद दिस सेट बिकॉज इवन अगर करने आता तो भी यू शुड नॉट हैव डन इट ड्यूरिंग द टेस्ट बिकॉज इट वुड हैव टेकन अ गुड 20 minutes or 25 minutes फॉर यू टू क्रैक दिस एंटायर सेट. तो उतना टाइम एक सेट में डालना डजंट मेक एनी सेंस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन मे बी नॉट अटेम्प्ट एट ऑल ड्यूरिंग द टेस्ट. सो लेट्स सी, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर क्यूरियस कि कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. There are 10 players P1 to P10 who competed in an international javelin throw event. The number after P of a player reflects his rank at the beginning of the event. Rank 1 going to the topmost player. There were two phases in the event, with first phase consisting of rounds 1, 2, 3 and second phase consisting of rounds 4, 5 and 6. A throw is measured in terms of the distance it covers in meters up to 1 decimal point accuracy only if the throw is a valid one. तो valid होना चाहिए throw. For an invalid throw, the distance is taken as 0. A player's score at the end of a round is the maximum distance of all his throws up to that round. तो अगर राउंड 3 में मैं देख रहा हूँ तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो मैक्सिमम वैलिड थ्रो या मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी दी स्कोर ऑफ द प्लेयर, राइट. तो उसको स्कोर बोलते हैं. Players are re-ranked after every round based on their current scores. In case of a tie in scores, the player with a prevailing higher rank retains the higher rank. सो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है दैट दोनों को अगर जीरो मिलते हैं, सो लेट्स से P1, P2, P3, P4 ऑल गेट जीरोस, देन देयर रैंकिंग विल बी P1, P2, P3, P4, दैट्स इट. ठीक है. द रैंकिंग डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द प्लेयर्स गो फॉर देयर थ्रोस इन द नेक्स्ट राउंड. इन ईच ऑफ द राउंड्स इन द फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज में जो राउंड्स 1, 2, 3 है वहाँ पे क्या होता है, द प्लेयर्स थ्रो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेटेस्ट रैंक. That is, the player ranked 1 at that point throws first, followed by the player ranked 2 at that point, and so on. The top 6 players at the end of the first phase qualify for the second phase. In each of the rounds in the second phase, the players throw in decreasing order of their latest rank. That is, the player ranked 6 at that point throws first. तो 6 लोग जाएंगे second round में, उसमें क्या होगा second phase में, second phase में जब 6 लोग जाएंगे तब क्या होगा, द पर्सन, राइट, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे. डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर रैंक 6. तो जो वर्स्ट प्लेयर होगा इन दैट राउंड दैट वुड बी द पर्सन हु वुड बी थ्रोइंग द फर्स्ट. ठीक है, ये होगा. फॉलोड बाय द प्लेयर रैंक्ड 5th at that point and so on. The players ranked 1, 2 and 3 at the end of the 6th round receive gold, silver and bronze medals respectively. तो 6th round के बाद में जो भी 1, 2, 3 है उनको medals मिलेंगे. All the valid throws of the event were of distinct डिस्टेंसेस थे, वैलिड थ्रोज जो थे, तो वहाँ पे कोई टाई ब्रेकर नहीं है. एज पर स्टेटेड मेजरमेंट एक्यूरेसी, द टेबल्स बिलो शो डिस्टेंसेस कवर्ड बाय ऑल वैलिड थ्रोज इन द फर्स्ट एंड द थर्ड राउंड ऑफ द इवेंट. तो फर्स्ट राउंड में P1, P3, P5, P6, P7, P9 के ये स्कोर्स थे और ये सिर्फ ये वैलिड थे. मतलब क्या हो गया, जो बचे हुए तो लोग हैं P2, P4, P8 एंड P10, ये 4 लोगों के स्कोर्स जीरो थे, राइट. दे डिड नॉट हैव वैलिड थ्रोज इन द फर्स्ट राउंड. वैलिड थ्रोज इन द थर्ड राउंड, अब थर्ड राउंड में ना सिर्फ 3 लोगों ने वैलिड थ्रोज दिए हैं, P1, P3, P9. उसके बाद जो भी लोग थे P2, P4, P5, P6, P7, P8, P10, ऑल द रिमेनिंग 7 पीपल हैड इनवैलिड थ्रोज, मीनिंग दैट दे हैड 0 points दैट वर गिवन टू देम. अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. अमंग द थ्रोज इन द सेकेंड राउंड ओनली द लास्ट 2 वेर वैलिड, तो ये अपने को दिया हुआ है. बोथ दी थ्रोस एनेबल्ड दीज प्लेयर्स टू क्वालिफाई फॉर द सेकेंड फेज. तो ये थ्रोस जो थे उसने सेकेंड फेज में जाने को उनको हेल्प किया. वन ऑफ देम क्वालिफाइंग विद द लीस्ट स्कोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक बार देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट वी हैव हियर. सो ये फर्स्ट राउंड के जो स्कोर्स थे वो थे. सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट. सो बिफोर द फर्स्ट राउंड या फर्स्ट राउंड के अंदर का ऑर्डर क्या था, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और P10. दिस इज ऑब्वियस, right. First round mein this was the order in which they threw.
अब मेरे को पता है दैट P1 को 82.9 का डिस्टेंस मिला, P3 को 81.5, 86, 82, 87, 84 सब मिले. नाउ वी नो दैट व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज में क्या होता है, द पर्सन, राइट, द पर्सन हु हैज थ्रोन द बेस्ट, द हाईएस्ट रैंक्ड इंडिविजुअल गोज फर्स्ट. तो यहाँ पे इफ यू हैव रेड दिस केयरफुली, दिस पार्ट, द टॉप the player ranked first at that point throws first, followed by the player ranked 2 at that point and so on. तो first phase के अंदर ये होगा. So we can say that after this what would have happened, यही valid scores थे. अब अगर ये valid distances थे, valid throws थे rather, then P7 should have been the first one. तो P7 का सबसे पहला throw होता in the second round. What about the next best? 87.2 हो गया. Next best is 86.4 I believe. Yeah. तो next would have been P5. उसके बाद किसने थ्रो किया होता, 86.4 हो गया. नाउ वी हैव 84.1 आई बिलीव, या दैट इज द नेक्स्ट वन, 84.1. तो उसके बाद P9 ने थ्रो किया है. आफ्टर 84.1 यू हैव 82.9, तो फिर P1 ने थ्रो किया. आफ्टर दैट यू हैव 82.5 एंड 81.5, तो P6 एंड P3, राइट. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, बाकी लोगों के तो जीरो थे. अगर जीरो है एंड द डिस्टेंसेस आर सेम विच इज जीरो इन दिस केस, देन दे वुड बी थ्रोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर रैंक्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे कौन कौन नहीं है, P2 नहीं है, P4, P2, P4, P8 एंड P10. सो विल जस्ट राइट P2, P4, P8 एंड P10. ये थ्रो का ऑर्डर था. दैट इज व्हाट वी नो हियर. ठीक है. अब क्या हो गया सेकेंड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड के बीच में क्या हो गया, लेट्स सी. सेकेंड राउंड के अंदर ना ओनली द लास्ट टू वेर वैलिड, ओनली द लास्ट टू वेर वैलिड, मतलब सिर्फ P8 और P10 के वैलिड थ्रोस थे, बाकी सबके जीरो थे. अब बाकी सबके अगर जीरो है, देन आई नो फॉर एग्जाम्पल, आई नो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दैट, एक समझ लो P7, P5, P9, P1, P6, P3, ये लोगों का कुछ तो वैलिड थ्रो था ना फर्स्ट राउंड में, उनका वैलिड थ्रो था. सो देयर डिस्टेंस शुड हैव बीन ग्रेटर देन जीरो, सम डिस्टेंस दे हैव थ्रोन. P8, P10 के भी वैलिड थ्रोस थे, सम डिस्टेंस दे शुड हैव थ्रोन. बट P2, P4 का डिस्टेंस तो जीरो है, तो P2, P4 हैव टू बी द लास्ट थर्ड राउंड के अंदर. ठीक है. बिकॉज उन लोगों ने एक भी वैलिड थ्रो नहीं किया, ना फर्स्ट राउंड में किया है ना सेकंड राउंड में किया है. थर्ड राउंड में वी डोंट नो व्हाट दे हैव डन, बट फर्स्ट एंड सेकंड में डेफिनेटली दे डोंट हैव अ वैलिड थ्रो. सो गोइंग इनटू द थर्ड राउंड दे वुड बी द लास्ट टू पीपल टू थ्रो. एंड बिकॉज P2 इज रैंक्ड हायर देन P4, क्योंकि 2 इज बेटर देन 4, P2 विल बी द 9th पर्सन टू थ्रो एंड P4 विल बी द 10th पर्सन टू थ्रो. ये हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी नो दैट P7, P5, P9 ये सारे नंबर्स और P8, P10 विल अपीयर इन सम ऑर्डर इन द थर्ड राउंड. ठीक है. तो थर्ड राउंड में कोई तो ऑर्डर में ये सारी चीजें आएंगी, ये सारे लोगों के थ्रोस आएंगे. दैट इज व्हाट वी नो. दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट राउंड, या इन द फर्स्ट राउंड दिस वाज द ऑर्डर, इन द सेकंड राउंड दिस वाज द ऑर्डर. थर्ड राउंड के अंदर कुछ तो ऑर्डर होगा. वी डोंट नो वेदर 8 एंड 10 आर बेटर देन 7, 5, 9, 1, 6, 3, अपने को बिल्कुल नहीं पता. ठीक है. व्हाट एल्स डू वी नो. थर्ड राउंड के अंदर अगर देखेंगे, P1 थ्रू 88.6, सो P1 का 82.9 था, राइट. P1 ने अपना बेटर किया थ्रो, 88.6 तक चला गया P1 का थ्रो. P3 79 था, तो P3 का वैल्यू रिमेन्ड एज इट इज, P3 का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. P9 81.4, बट P9 ऑलरेडी हैड 84.1, सो दिस इज द बेटर वन. सो व्हाट कैन वी से आफ्टर दिस. थर्ड राउंड के अंदर ओनली 3 पीपल हैड वैलिड थ्रोस. सो यहाँ पे P8 का थ्रो ना कुछ A है, लेट्स से A मीटर्स का है, और P10 का स्कोर कुछ B मीटर्स का है डिस्टेंस, लेट्स से. Then what happened at the end of the third round na, if I were to write down the throws of all the people who were there, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 and P10, तो 10 प्लेयर्स हैं हमारे पास, राइट. व्हाट डू वी नो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, देन व्हाट विल वी नो. सिर्फ P1, P3 और P9 के ही वैलिड थ्रोस थे, राइट. सो द अदर्स विल हैव द सेम डिस्टेंस दैट दे हैड अर्लियर. अब P1 के केस में द बेस्ट थ्रो दैट P1 हैज हैड इज 88.6, तो P1 का स्कोर वुड हैव बीन 88.6 हियर. व्हाट अबाउट P2. P2 ने ना यहाँ पे जीरो है, मतलब एक तो लास्ट में P2, P4 थे, तो उनका अभी तक का स्कोर तो जीरो ही था, और यहाँ पे भी उन लोगों ने कोई भी वैलिड थ्रो नहीं किया. सो P2 का स्कोर विल बिकम जीरो, ऑल्सो P4 का स्कोर विल बिकम जीरो, बिकॉज एनीवे इनका जीरो था अभी तक. P3 के केस में P3 had a throw of 79, but P3 already had a better score of 81.5. तो राउंड 3 के बाद ना P3 का वैल्यू 81.5 होगा. What about P5? P5 was at 86.4, वैलिड थ्रो है नहीं, तो 86.4 पे ही P5 अटक गया. P6 82.5, no other valid throws after that, so P6 will be at 82.5. P7 87.2, no more valid throws after that, so P7 will remain at 87.2. P8
P8 इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। यहाँ पे ना P8 ने कुछ तो डिस्टेंस किया था, तो A ही है, बिकॉज P8 डिड नॉट हैव अ वैलिड थ्रो इन द फर्स्ट राउंड, P8 डिड नॉट हैव अ वैलिड थ्रो इन द थर्ड राउंड, तो P8 का जो एक वैलिड थ्रो है वही उसका बेस्ट थ्रो बन जाता है। व्हाट अबाउट P9? इन केस ऑफ P9 इफ यू लुक एट इट 84.1 एंड 81.4, मतलब P9 का 84.1 है बेस्ट डिस्टेंस। व्हाट अबाउट P10? P10 का भी फर्स्ट राउंड में वैलिड थ्रो नहीं है, थर्ड राउंड में वैलिड थ्रो नहीं है, सेकेंड राउंड के अंदर दी वैलिड थ्रो वाज B, सो P10 का वैल्यू शुड हैव बीन B. Now what we have been given here is that both the throws enabled these people to qualify for the second phase. तो ना ये जो दो लोगों के स्कोर्स जो वैलिड थे A और B ना, A और B दोनों वेंट इनटू द सेकेंड फेज। तो थर्ड राउंड के अंदर जो भी हुआ टॉप 6 के अंदर A और B थे, सो A वाज अमंग द टॉप 6, B वाज अमंग द टॉप 6, ठीक है। P2 डेफिनेटली नहीं हो सकता, P4 डेफिनेटली नहीं हो सकता। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ विच 4 हैव टू बी देयर ना, क्योंकि 6 लोगों को अपन सेकेंड फेज में लेके गए हैं। सो इसके अंदर जो वर्स्ट दो लोग थे वो लोग वुड हैव बीन आउट ऑफ द कंपटीशन, व्हिच बेसिकली मींस दैट इफ यू लुक एट द रिमेनिंग वंस 88.6 81.5, सो 81.5 सीम्स टू बी द मिनिमम, तो P3 इज आउट ऑफ द कंपटीशन, P3 बिल्कुल कंपटीशन के बाहर। एंड 88.6 86.4 82.5 सीम्स टू बी द लीस्ट, तो P6 भी कंपटीशन के बाहर चला गया, ठीक है। सो P3 एंड P6 वर आउट ऑफ द कंपटीशन। इन अ वे वी कैन से दैट P3 एंड P6 अगर बाहर है तो P6 82.5 था, तो P6 शुड हैव बीन रैंक्ड हियर, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर द थर्ड राउंड, सो P6 एंड P3 वुड हैव बीन आउट ऑफ द कंपटीशन। तो टॉप 6 में कौन आएंगे आफ्टर राउंड 3, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड राउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर राउंड 3. After round 3, the sort of ranking should have been P1, P5, P7, P8, P9, P10, ठीक है। बट ये कौन से ऑर्डर में है वी डोंट नो, राइट? सो दिस विल बेसिकली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, और A और B पे डिपेंड करेगा। वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ A और B, सो वी कांट कमेंट दैट एक्चुअल ऑर्डर क्या था, बट वी नो दैट these 6 पीपल क्वालिफाइड, ठीक है। सो फेज 2 के अंदर कौन कौन क्वालिफाई किया एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। फेज 2 के अंदर P1 क्वालिफाइड, फेज 2 के अंदर P5 वुड हैव क्वालिफाइड, P7 वुड हैव क्वालिफाइड, P8 वुड हैव क्वालिफाइड, P9 क्वालिफाइड, P10 क्वालिफाइड। एंड व्हाट वर द डिस्टेंसेस विद व्हिच दे क्वालिफाइड? 88.6 इज P1, 86.4 is P5, P7 is 87.2, P8 was A, P9 was 84.1 and P10 was B. तो ये उनके क्वालिफाइंग डिस्टेंसेस हैं। That's what we know. Now let's see what happened. None of these players won any medal. मतलब फेज 2 के अंदर सॉरी A और B जो है ना वो टॉप 3 में थे ही नहीं। सो P8 को मेडल नहीं मिला, P10 को मेडल नहीं मिला फाइनली। सो दिस इज मोस्टली डन। Then if a player throws first in a round and he was also the last in the round, then the player is said to get a double and 2 players got a double. मतलब जिसने लास्ट फेंका था इन दी फर्स्ट इन अ राउंड एंड ही वाज आल्सो लास्ट इन द प्रीवियस राउंड, या किसी ने अगर लास्ट थ्रो किया था और नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट थ्रो किया, मतलब 2 कंसेक्यूटिव थ्रोस अगर किसी ने किए होंगे, देन दैट प्लेयर इज सेट टू हैव अ गेट अ डबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाले केस के अंदर इफ यू लुक एट इट, फर्स्ट राउंड में अगर देखते हैं, सो फर्स्ट राउंड में हुएवर हैज द बेस्ट थ्रो वुड हैव थ्रोन फर्स्ट इन द सेकंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड का ऑर्डर तो P10 लास्ट में था यहाँ पे, तो सेकेंड राउंड में P7 ने फर्स्ट थ्रो किया बिकॉज P7 वॉज द हाइएस्ट, 87.2 पे P7 हाइएस्ट था, तो ये तो डबल नहीं हुआ, राइट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वाले के अंदर सेकेंड राउंड के अंदर जो वर्स्ट था P10 शुड हैव बीन दी, और हुएवर P4 जो था लेट्स से सेकेंड राउंड में जो वर्स्ट थ्रो जिसका था P4 का लेट्स से, देन P4 शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू थ्रो इन द थर्ड राउंड। बट यहाँ पे ऐसे तो नहीं होगा अगर डबल करना है तो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जिसका बेस्ट थ्रो होगा ना वो सबसे पहले थ्रो करेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सबसे लास्ट सबसे वर्स्ट जिसका थ्रो था P2 या P4 का, वो लोग तो बेस्ट थ्रो कर नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, A और B है, राउंड 2 के अंदर ना द लास्ट पर्सन टू थ्रो वुड हैव बीन P10, ठीक है। राउंड 2 के अंदर द लास्ट पर्सन टू थ्रो शुड हैव बीन P10, और P10 के पास चांस है डबल करने का, कैसे? बिकॉज P10 हैज अ वैलिड थ्रो, इफ P10 हैज अ वैलिड थ्रो, B इज अ वैलिड थ्रो, अगर B ने सबको डिफीट कर दिया है, देन P10 गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू थ्रो फर्स्ट इन द थर्ड राउंड। सो दिस कुड बी वन ऑफ द डबल्स दैट कैन एग्जिस्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड राउंड में क्या हुआ था। थर्ड राउंड के अंदर 10 पीपल हैड थ्रोन, ठीक है, 10 पीपल हैड मेड द थ्रो। अब 10 लोगों ने अगर थ्रो किया है थर्ड राउंड के अंदर, एंड वी नो दैट P2 एंड P4 हैव टू बी द वंस हु वुड हैव थ्रोन लास्ट इन द थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड के अंदर अगर P2 या P4 सबसे पहले थ्रो कर रहे हैं, देन दे शुड हैव गॉट द डबल, बट P2 एंड P4 तो बेचारे क्वालिफाई ही नहीं किए। इफ दे हैव नॉट क्वालिफाइड, हाउ कैन दे थ्रो फर्स्ट इन द फोर्थ राउंड,
ठीक है। सो पी थर्ड राउंड के अंदर समझना है कि क्या हो रहा है। थर्ड राउंड के अंदर जो वर्स्ट कैंडिडेट्स थे वो कौन थे, P2 एंड P4 वेर द वर्स्ट कैंडिडेट्स। नाउ दे शुड हैव मिराकुलसली मेड अ थ्रो सच दैट दे वुड हैव बीन एट द टॉप ऑफ द ट्री और इन द सिक्स्थ पोजीशन एंड देन दे कुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू थ्रो इन P4, बट ये क्वालिफाई नहीं हुए हैं, राइट। सो राउंड 4, सॉरी राउंड 4 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे डबल नहीं बनेगा। 1 और 2 के बीच में डबल नहीं बन रहा, 2 और 3 के बीच में डबल बन सकता है, 3 और 4 के बीच में डबल नहीं बनेगा। What about 4 and 5? Now we are left with only two rounds or two places जहाँ पे डबल हो सकता है, ठीक है। Let's think about this. अब P4 में क्या होगा, P4 के अंदर let's say, I am not telling you the order, but ये order है, let's say for example, I am just giving you an example, P1, P5, P7, P8, P9, P10, ठीक है। अभी सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में जो वर्स्ट प्लेयर होगा ना वो सबसे पहले थ्रो करेगा, राइट। सो जो वर्स्ट प्लेयर होगा इन द सेकेंड राउंड, दैट पर्सन विल बेसिकली थ्रो द फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ना फेज टू के अंदर द प्लेयर्स थ्रो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेटेस्ट रैंक। सो रैंक 6 जो होगा, दिस पर्सन विल थ्रो फर्स्ट। तो यहाँ पे चांसेस हैं दैट समवन कैन गेट अ डबल, बिकॉज अगर राउंड 4 के अंदर द वर्स्ट पर्सन हु थ्रोस विल बी थ्रोइंग इन द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, और रैंक करेंगे, और रैंक करने के बाद जो लास्ट आता है उसको फिर से फर्स्ट थ्रो करना है, फाइन। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस। जो डबल होगा ना वो सेकेंड फेज में भी पॉसिबल है। फर्स्ट फेज के अंदर इफ यू लुक एट इट, इट वुड हैव बीन पॉसिबल व्हेन इट केम टू द सेकेंड राउंड वर्सेस थर्ड राउंड, क्योंकि सेकेंड राउंड में क्या हुआ था, P10 शुड हैव बीन द वन टू थ्रो द लास्ट, देयर वाज अ गुड चांस दैट P10 कुड हैव बीन द वन हु हैड द बेस्ट डिस्टेंस। तो P10 कुड हैव बीन द वन जिसने डबल थ्रो किया होगा, हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। सेकेंड फेज के अंदर अगर देखा जाए, सेकेंड फेज के अंदर हुएवर इफ समवन थ्रोज द लास्ट, लेट्स से, एंड जो सबसे लास्ट जिसने थ्रो किया है उसका सबसे वर्स्ट डिस्टेंस है तब तक, देन दैट पर्सन बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू थ्रो, ठीक है। अगर उसने फर्स्ट पर्सन थ्रो किया है, अगेन यू बेसिकली हैव समवन इन द लास्ट पोजिशन, दैट पर्सन नाउ थ्रोज, देन दैट पर्सन गेट्स द डबल। So there are 3 places जहाँ पे डबल हो सकता है, all 3 could be possible, जहाँ पे one player might get the double twice and one player might get the double once, हो सकता है, because 2 players got a double। ऐसा नहीं बोला है कि 2 players got a double exactly once, ऐसे नहीं बोला हुआ है। Let's see, in each round of the second phase exactly one player improved his score, right। हर एक राउंड के अंदर एक ही प्लेयर ने अपना स्कोर इंप्रूव किया। Each of these improvements was by the same amount, right? So these people improved their score by the same amount. तो 3 राउंड के अंदर 3 अलग अलग लोगों ने अपने स्कोर्स इंप्रूव किए होंगे, या फिर एक ही प्लेयर ने 3 बार अपना स्कोर इंप्रूव किया होगा, या 1 पर्सन इंप्रूव्ड देयर स्कोर ट्वाइस एंड 1 पर्सन इंप्रूव्ड देयर स्कोर वंस, ऐसे कुछ हो सकता है कॉम्बिनेशन, राइट। बट दिस वुड हैव हैपेंड, 1 पर्सन वुड नॉट हैव इंप्रूव्ड देयर स्कोर वंस ट्वाइस थ्राइस, तीनों राउंड में इंप्रूव किया, ऐसे नहीं बोल सकते। वी नो दैट देयर वाज ओनली 1 पर्सन हु इंप्रूव्ड देयर स्कोर इन ईच राउंड, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। The gold and the bronze medalists improved their scores in the 5th and the 6th rounds respectively. तो जिसको गोल्ड मिला ना वो 5th राउंड में अपना स्कोर इंप्रूव कर लिया, एंड जिसको ब्रॉन्ज मिला ना उसने 6th राउंड में अपना स्कोर इंप्रूव कर लिया। सो गोल्ड मेडलिस्ट ने ना लास्ट राउंड में स्कोर इंप्रूव नहीं किया होगा, सो द गोल्ड मेडलिस्ट वुड हैव गॉट द हाईएस्ट डिस्टेंस इन द 5th राउंड इटसेल्फ। तो 5th राउंड में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस था, दैट पर्सन शुड गेट द गोल्ड मेडल, दैट इज वन थिंग। वन मेडल विनर इंप्रूव हिज स्कोर इन द 4th राउंड, ये बहुत ना ऐसे सरप्शियसली दिया हुआ है कि एक मेडल विनर ने 4th राउंड में किया, वो गोल्ड था, सिल्वर था कि ब्रॉन्ज था, वी डोंट नो। So let's see what happens. So someone improved their score in the 4th round. The gold medalist, eventual gold medalist, improved their score in the 5th round, and the eventual bronze medalist improved their score in the 6th round. And last point जो दिया हुआ है, the difference between the final scores of the gold medalist and the silver medalist, as well as the difference between the final scores of the silver medalist and the bronze medalist was 1 meter. So basically gold, silver, bronze, right? So gold के केस में अगर उसका distance x meters है, silver का distance will be x minus 1, या फिर यहाँ पे ना x ले लेते हैं तो ये x plus 1 और ये x plus 2 हो जाएगा। So this is basically the condition, ठीक है। So x plus 1, x plus 2, ये gold medalist, silver medalist, bronze medalist होने चाहिए। We know that P8 and P10 did not win any medals, ठीक है। P8 और P10 के मेडल्स ही नहीं बने कुछ भी। We know that P1, P5, P7, P9 में से कुछ ना कुछ स्कोर इंप्रूव हुआ होगा किसी ना किसी का, पॉसिबल है, या फिर दे स्टेड वेयर दे वेयर, ठीक है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ P9 स्टेड वेयर दे वेयर, 3 बार इंप्रूव है ना स्कोर, राइट। तो एक किसी का स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, पिजन होल प्रिंसिपल से यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। देयर वुड हैव बीन एटलीस्ट 1 पर्सन जिसका स्कोर इंप्रूव ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर P9 का स्कोर इंप्रूव ही नहीं हुआ, लेट्स से दिस P9 का स्कोर डिड नॉट इंप्रूव एट ऑल एंड इट स्टेड एट 84.1, देन व्हाट कुड हैव हैपेंड, या तो P9 को मेडल मिला तो नहीं मिला। If P9 got a medal, then the other people should have got 85.1, 86.1 at most मिलना चाहिए था,
right? If P9's scores did not change, then the highest score that the gold medalist could have got would be 86.1, 2 points आगे जाके correct. बट यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव 88.6, 87.2, 86.4, तो बहुत सारे हमारे आगे हैं यहाँ पे. तो P9 ना बहुत ज़्यादा P9 का इंप्रूवमेंट होगा ऐसा बोल नहीं सकते. देयर इज वन अदर स्मॉल थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट. यहाँ पे P9 जो है ना उसका स्कोर लेट्स से उसका जो गैप था वो X से इंप्रूव हुआ या जो भी P से इंप्रूव हुआ या R से इंप्रूव हुआ, चलो राइट. सो प्लस R इज व्हाट हैपेंड हियर. आई ऑल्सो नीड टू इंप्रूव सम वन बाय प्लस R एंड अनदर बाय प्लस R. तो 3 बार मुझे R से इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट. इफ आई इंप्रूव P9 बाय R एंड इफ आई इंप्रूव द अदर 2 बाय ऑल्सो R, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये गैप जो है ना वो तो सेम ही रहेगा ना, राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर. I cannot increase 3 people by the same amount because then what will happen? The initial gap that is there that will remain constant. तो अब यहाँ पे P1 अगर हम लोग 4 मैक्सिमम लोगों का स्कोर लिखते हैं 88.6, 87.2, 86.4 and 84.1, you can see that the gap here is 1.4. Yeah, the gap here is 0.8, the gap here is 1.3, 2.3 rather. ठीक है, तो 2.3 का गैप है. नाउ इफ ऑल ऑफ देम इंक्रीज बाय आर, देन गैप भी सेम ही रहेगा ना. इफ यू हैव 50 रुपीज, आई हैव 25 रुपीज, बोथ ऑफ आवर सम्स इंक्रीज बाय 20 रुपीज, अपना गैप फिर भी 25 ही रहेगा. अपना गैप 1 नहीं होने वाला, ब्रिज नहीं होने वाला. विच मीन्स दैट देयर हैज टू बी अ डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट वुड हैव बीन गेन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आर 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 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. या तो 1 person would have got 3R एंड बाकी सब लोग अपना उसका मुंह देखते बैठे, या फिर 1 person would have got 2R, 1 person would have got 1R. ये हो सकता है. नाउ इफ ऑल 3 R's went to 1 person तो भी पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस 1 है ही नहीं किसी के भी बीच में. सो द डिस्टेंस ऑफ 1 नीड्स टू बी जनरेटेड एज वेल. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट 1 person would have improved their score by 2R and another person would have improved their score by R. That's it. So basically 2 ही लोगों का स्कोर इंप्रूव हुआ है. So what we have been told that 4th round, 5th round, 6th round में एक इंसान का improve हुआ था. 1 person improved their score in 2 rounds and 1 person improved their score in 1 round. ठीक है, that is what we know in this particular context. तो गोल्ड मेडलिस्ट का स्कोर बढ़ा 5th राउंड में, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का स्कोर बढ़ा 6th राउंड में, एंड किसी का तो स्कोर बढ़ा होगा 4th राउंड में, या तो गोल्ड मेडलिस्ट या तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. विच टेल्स मी दैट सिल्वर मेडलिस्ट का स्कोर चेंज ही नहीं हुआ, राइट. दैट इज द ऑब्जर्वेशन हियर. सो या तो गोल्ड मेडलिस्ट का स्कोर चेंज ट्वाइस और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का स्कोर इंप्रूव्ड ट्वाइस, विच मीन्स सिल्वर मेडलिस्ट का स्कोर इंप्रूव ही नहीं हुआ. नाउ हु कैन गेट द सिल्वर मेडल? यार ये P9 को तो सिल्वर मेडल मिल ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर 3 people अहेड ऑफ देम. ठीक है, तो P9 ने अपना स्कोर अगर चेंज नहीं भी किया होगा तो भी ऑलरेडी 3 लोग उसके ऊपर हैं. तो स्कोर चेंज नहीं करके हाउ कैन दिस पर्सन गेट अ सिल्वर मेडल? हो ही नहीं सकता. सो या तो P1 या तो P5 या तो P7 को सिल्वर मेडल मिला होगा. दैट मच वी कैन से फॉर श्योर. अगर P1 को सिल्वर मेडल मिला, लेट्स से इफ P1 इज द मिडल वन, P1 को सिल्वर मेडल मिला तो 88.6 अगर सिल्वर मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट बिकम्स 89.6 एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बिकम्स 87.6. अगर P1 को सिल्वर मिला है तो. अगर P5 को सिल्वर मिला है लेट्स से, देन 86.4 इज द सिल्वर मेडलिस्ट का स्कोर, 87.4 बिकम्स द गोल्ड मेडलिस्ट का स्कोर एंड 85.4 बिकम्स द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का स्कोर. बट P1 ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो 87.4 विनर कैसे हो सकता है जबकि P1 के पास ऑलरेडी 88.6 है. सो दिस विल नॉट वर्क. नाउ लेट्स से P7 वाज द सिल्वर मेडलिस्ट. P7 को 87.2 है, सॉरी, तो दिस वन विल बिकम 88.2, दिस वन विल बिकम 86.2, बट ऑलरेडी मेरे पास 88.6 है, तो ये कैसे गोल्ड मेडलिस्ट बना? So I have only one case here that P1 reached P1 stayed at 88.6, someone reached 87.6 and someone reached 89.6. ठीक है, अभी 89.6 कौन कौन पहुंच सकता है भाई? ये तो नहीं है. इसको 89.6 अगर करना है तो दिस वन हैज टू गो अहेड बाय 2.4, राइट. अगर इसको 87.6 जाना है, दिस वन हैज टू गो अहेड बाय 1.2. मेक सेंस. तो यही स्प्लिट होना चाहिए, राइट. सो 87.2 वाला जो इंसान है ना, उसका 1.2 से स्कोर बढ़ा, तो इसका प्लस 1.2 बन के इसको मिल गया गोल्ड मेडल. दिस गाय रिमेन्ड वेयर इट इज एंड इसको मिला सिल्वर मेडल. एंड 86.4 इंक्रीज्ड बाय प्लस 1.2, इसको मिला ब्रॉन्ज मेडल. अब इसका इंप्रूवमेंट हुआ होगा 6th राउंड में, इसका इंप्रूवमेंट हो गया होगा 4th राउंड में एंड 5th राउंड में, एंड इसका स्कोर कहीं पे कुछ हुआ नहीं. ठीक है, एंड नाउ वी हैव मोस्टली क्रैक्ड दिस सेट. The only problem that remains here is भाई डबल किसको मिला? ठीक है, so who got the double, that is basically the point.
राइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई डबल किसको मिल सकता है. सो लेट्स सी. नाउ सेकेंड राउंड में क्या होगा. सेकेंड राउंड में इफ यू थिंक अबाउट इट, ये P8 का कुछ A डिस्टेंस था, P10 का कुछ B डिस्टेंस था. वी डोंट नो वेयर दिस वाज. व्हाट एल्स डू वी नो हियर. बोथ these throws enabled these players to qualify for the second round with one of them qualifying with the least score. एक किसी का बहुत ही कम स्कोर से वो क्वालिफाई हुआ था. अगर वो कम स्कोर से क्वालिफाई हुआ था, देन व्हाट कैन वी से अबाउट दैट स्कोर. सी P6, P3, P2, P4 डिड नॉट गेट क्वालिफाइड. राइट. इफ यू लुक एट इट, P6 का स्कोर वाज 82.5. तो भाई ये किसी का तो स्कोर A या B में से कोई तो एक स्कोर ना जो 82.5 के ऊपर था. दोनों भी 82.5 के ऊपर थे. सो दीज टू स्कोर्स were greater than 82.5 for sure, right? That's what we know. And final figure भी अगर देखा जाए ना तो ये 84.1 चेंज नहीं हुआ, right? And both of them did not get a medal as well. तो ये अपने को पता है उनको मेडल भी कुछ मिला नहीं है करके. That's what we know here. So chances are that 84.1 के नीचे होगा उनका स्कोर, या तो एटलीस्ट मुझे पता है that it will definitely be below 87.6 के नीचे तो पक्का है. ठीक है. So 87.6 या 84.1 के नीचे है, that much we can say for sure. अभी आगे क्या, आगे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है. नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, टू प्लेयर्स गॉट अ डबल. अब दो प्लेयर को डबल मिलना जरूरी है. हाउ दे वुड थिंग्स हैव हैपेंड इन द सेकेंड राउंड और सेकेंड फेज. सेकेंड फेज में क्या हो रहा है. P1, P5, P7, P8, P9, P10 है. राइट. नाउ फोर्थ राउंड में क्या हो गया होगा. थिंक अबाउट इट. फॉरगेट अबाउट द लाइनअप फॉर द फोर्थ राउंड, क्योंकि थर्ड से फोर्थ में तो ट्रांजिशन हो गया है, नहीं हुआ है रादर, बिकॉज थर्ड राउंड में हुएवर थ्रू द लास्ट कुड नॉट हैव थ्रोन द फर्स्ट बिकॉज दैट पर्सन वाज एलिमिनेटेड. इतना अपने को समझ में आ गया. फोर्थ राउंड में देखते हैं जो भी ऑर्डर था, व्हाट वुड हैव हैपेंड. भाई किसी का स्कोर चेंज ही नहीं हुआ. P8 का स्कोर A रहा, P10 का स्कोर B रहा. चेंज किसका स्कोर हो गया. दिस वन चेंज द स्कोर. P7 का स्कोर चेंज हो जाता है. P7 बेसिकली गोज अप फ्रॉम 87.2 टू 88.4. राइट. P7 88.4 तक चला जाता है. 1.2 से अपना स्कोर इंप्रूव करता है. करेक्ट. सो P7 वुड हैव इंप्रूव्ड देयर स्कोर टू 88.4. बाकी सबके स्कोर तो सेम रहे होंगे. अब यहाँ पे अगर देखा जाए, राइट, इफ यू लुक एट इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हु वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू थ्रो. द लास्ट पर्सन टू थ्रो कुड हैव बीन P9, P8 और P10 फोर्थ राउंड में. फिफ्थ राउंड में क्या होगा, जो भी वर्स्ट है इन तीनों में से उसने फिफ्थ राउंड में थ्रो किया होगा, विच इज अ पॉसिबिलिटी. राइट. एंड फिफ्थ राउंड टू सिक्स्थ राउंड में क्या हो गया होगा. हुएवर वाज द वर्स्ट पर्सन इन द फिफ्थ राउंड, जिसका भी रेटिंग सबसे कम था, उसने सिक्स्थ राउंड में सबसे पहले थ्रो किया होगा. Right. So that is a possibility where you can have a double. Fine. So these are the things that you have to keep in mind. Double के लिए एक बार और सोच के देख लेना. If you can find something and if you can get that double वाला bit, this entire set will then get closed properly. So in this case, let's see कि कहाँ पे double आ सकता है. तो double के केस में one we have seen that second round और third round के बीच में एक double आ सकता है. Let's see what happens in the second phase. तो second phase जो हमने नहीं देखा था ना, उसको एक बार देख लेते हैं. What exactly could have happened? So let's say second phase के अंदर, I know that the first phase में क्या हो रहा है. चलो first phase में let's see what happens. If you look at the data that we have here, in the first phase, the person who is ranked 1 throws first, then the person who is ranked 2 throws, and so on and so forth. So the best person will throw first, and the worst person will throw last. ठीक है. ये हो जाएगा राउंड 1 में. राउंड 2 में भी यही होगा. बेस्ट, अब इनमें से जो बेस्ट है वो फर्स्ट आएगा और इनमें से जो वर्स्ट है वो लास्ट में आएगा. राउंड 3 में भी सेम होगा. द बेस्ट पर्सन वुड थ्रो एंड द वर्स्ट पर्सन वुड थ्रो. राउंड 4 में क्या होगा. राउंड 4 में यू विल स्टार्ट उल्टा नाउ. सो नाउ द वर्स्ट पर्सन विल थ्रो एंड द बेस्ट पर्सन विल थ्रो लास्ट. राउंड 5 में एग्जैक्टली वही चीज़ होगा. द वर्स्ट पर्सन विल थ्रो फर्स्ट एंड द बेस्ट पर्सन विल थ्रो लास्ट. राउंड 6 में क्या होगा. द वर्स्ट पर्सन विल थ्रो फर्स्ट एंड द बेस्ट पर्सन विल थ्रो लास्ट. राइट. नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. नाउ थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस इन फेज 2. फेज 2 के अंदर हम लोगों ने एक चीज देखा था, दैट इन एवरी राउंड एग्जैक्टली 1 प्लेयर इंप्रूव्स देयर स्कोर. बाकी 5 लोगों का स्कोर मोस्टली वही रहता है. राइट. ऑल्दो दे माइट हैव वैलिड थ्रोज, दे आर नॉट इंप्रूविंग देयर स्कोर, तो देयर बेस्ट स्कोर रिमेन्स द सेम. अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि राउंड 4 और राउंड 5 के बीच में, लेट्स से फ्रॉम राउंड 4 टू राउंड 5, दिस पर्सन एंड दिस पर्सन आर द सेम, तो कैसे चलेगा. राउंड 4 के अंदर जो बेस्ट पर्सन था वो सडनली अभी वर्स्ट पर्सन बन गया है. अब वर्स्ट पर्सन बन गया मतलब क्या. द स्कोर ऑफ दिस पर्सन रिमेन्ड व्हाट इट वाज, द अदर्स लीपफ्रॉग्ड दिस पर्सन. तो 5 लोगों ने अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहिए. अगर वो बेस्ट से वर्स्ट हो रहा है तो बेस्ट से वर्स्ट मतलब उसको पेनल्टी मिलकर वो वर्स्ट नहीं हो रहा ना. दैट पर्सन स्टिल हैज द डिस्टेंस दैट दे हैड ऑन द प्रीवियस राउंड, बट बाकी लोग आगे चले गए हैं. सो दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम.
सो R4 to R5 में अगर बेस्ट को वर्स्ट बनना है, बेस्ट इन दैट राउंड बिकम्स द वर्स्ट इन द नेक्स्ट राउंड, 5 पीपल हैव टू लीप फ्रॉग, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज एक ही इंसान ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है. Similarly, R5 to R6 के अंदर if this person has to be the same as this person, the best person at the beginning of R5 suddenly becomes the worst person at the beginning of R6. ये कैसे होगा? अगर R5 के अंदर 5 लोगों ने उससे बेटर थ्रो किया तो ही वो वर्स्ट बन सकता है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अ पेनल्टी फॉर थ्रोइंग लेस डिस्टेंस और समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. वट एवर वॉज द डिस्टेंस टिल देन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, सो दिस कैन नॉट हैपन. दैट्स वाई R4 to R5, R5 to R6 ये दो जगह पे डबल पॉसिबल नहीं है. R1 to R2 डबल पॉसिबल नहीं है. तो डबल्स पॉसिबल कहाँ पे थे? R2 to R3 could have been a double and R3 to R4 could have been a double. राइट, सो यहाँ पे what we are looking at in this particular case, ये वाला अगर देख लेते हैं ना, you will see in each of the rounds in the first phase, the players throw in the increasing order of their latest rank. So one will throw first, followed by the player ranked 2 at that point, and so on. The top 6 players at the end of the first phase qualify for the second phase. In each of the rounds in the second phase, the players throw in the decreasing order of their latest rank. That is, the player ranked 6 at that point throws first, followed by the player who is ranked 5, and so on and so forth. ठीक है, तो ये दिया हुआ है. एंड डबल का डेफिनेशन अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे है, इफ अ प्लेयर थ्रोज फर्स्ट इन अ राउंड एंड ही वाज आल्सो द लास्ट व्हाट लास्ट अमंग द प्लेयर्स इन द करंट राउंड. तो जो राउंड 4 के अंदर, राइट, सो नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ. राउंड 4 के अंदर जो क्वालिफाई हुए थे ना टॉप 6, वो टॉप 6 के अंदर अगर जो इंसान ने लास्ट यहाँ पे थ्रो किया था R3 में, दैट पर्सन थ्रोज, देन दैट बिकम्स अ डबल. तो दिस हैज टू बी अ डबल, दिस हैज टू बी अ डबल. अब इसका डबल क्या होगा? राउंड 2 में सबसे लास्ट किसने थ्रो किया था? लेट्स सी, राउंड 2 में सबसे लास्ट थ्रो किया था P10 ने, राइट. इफ राउंड 2 में P10 वाज द पर्सन हु थ्रू द लास्ट, देन हु वुड हैव थ्रोन फर्स्ट इन राउंड 3? P10 नहीं करना चाहिए था, बिकॉज P10 जो है ना वो सबसे आगे चला गया. P10 बेसिकली लीपफ्रॉग्ड एवरीवन हु वाज देयर टिल देन, right, which basically means that P10 went ahead of the highest scorer here as well. 87.2 के भी ऊपर चला गया वो, greater than 87.2 चला गया था वो एक टाइम पे. ठीक है, एंड लास्ट में इफ यू लुक एट इट, इट विल मेक सेंस वंस यू नो दैट 87.6, 88.6, 89.6 बन रहा है, तो ये बेचारा नहीं मेडल जीत रहा बिकॉज 87.2 के आसपास ही कहीं पे रह गया होगा. बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज P10 बेसिकली बिकेम द फर्स्ट पर्सन और द वन विद द बेस्ट थ्रो और द वन हु थ्रू द फर्स्ट इन द थर्ड राउंड. ये हो गया. अभी राउंड 4 के अंदर whoever came last has to throw to get that double. अब लास्ट कौन हो सकता है यहाँ पे? वी नो दैट द वर्स्ट पर्सन टू क्वालिफाई, राइट, एक जगह पे अगर देखा जाएगा, वन ऑफ देम क्वालिफाइंग विद द लीस्ट स्कोर. अब लीस्ट स्कोर से कौन क्वालिफाई होगा? P10 ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे है, तो P10 कुड नॉट हैव क्वालिफाइड विद द लोएस्ट स्कोर. सो द अदर पर्सन हु इज प्रेजेंट हियर P8, दैट पर्सन कुड हैव क्वालिफाइड विद द लोएस्ट स्कोर. ठीक है, P8 जो है ना वो 84.1 को भी बीट नहीं कर सकता था. इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ P8 वुड हैव डिफीटेड 84.1, देन 84.1 वाला वुड हैव क्वालिफाइड विद द लोएस्ट स्कोर. तो या तो P10 लोएस्ट स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है या तो P8 किया है. सो P10 ऑफ कोर्स इज एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो P8 शुड हैव क्वालिफाइड विद द लोएस्ट स्कोर. व्हाट डू वी गेट बिकॉज ऑफ दिस? P8 का स्कोर जो था ना वो 6th था, which basically means A would have been less than all the other values that we can see here including B. तो ये अपने को एक पता चल जाता है. So now let's look at the questions. Let's try to see if we are able to answer this. Which two players got the double? So fairly straightforward. P10 would have got a double from round 2 to round 3 and P8 would have got a double from round 3 to round 4. So P8 and P10 should be the answers or should be the people who got a double. So option D will be the correct answer here. Second, who won the silver medal? तो जिसने 88.6 स्कोर किया था उसको सिल्वर मेडल मिला. 88.6 was P1 and P1 got the silver medal. So P1 should be the answer to this question, option A. Next question, who threw the last javelin in the event? अब last javelin क्या हो रहा है? Round 6. Round 6 में क्या होता है? Worst player throws first and the best player throws last. अब एक ऑब्जर्वेशन जो पहले बताया था बीच में, that the gold medalist had thrown the best distance and in round 5 itself. क्योंकि राउंड 6 में उसका स्कोर तो इंप्रूव हुआ नहीं. सो जो स्कोर के साथ उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, दैट स्कोर वाज अचीव्ड इन राउंड 5 इटसेल्फ. तो जो इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट है ना, उसने सबसे लास्ट थ्रो किया होगा. सो इफ यू थिंक अबाउट इट मैथमेटिकली, द गोल्ड मेडलिस्ट न्यू ऑलरेडी दैट दे हैड गॉट द गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसका लास्ट का थ्रो इनकॉन्सिक्वेंशियल था, बट कंसिडरिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम, दैट पर्सन हैड टू मेक दैट थ्रो. सो जो इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट था, विच वॉज P7, he would have thrown the last javelin in the event. So P7 will be the answer to this one, option B. What was the final score of the silver medalist? We saw 88.6 was the score of the silver medalist, 89.6 was gold and 87.6 was the bronze.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फाइनल स्कोर ऑफ P8? तो P8 जो था वो सबसे कम स्कोर के साथ क्वालिफाई किया था, दैट्स व्हाट वी नो हियर, राइट? सो P8 बेसिकली वाज लेस देन एवरीवन हु वर हियर, तो उसका स्कोर 88.6 से कम था, 86.4 से कम था, 87.2 से कम था, 86.4 से कम था, 84.1 से भी कम था. सो A हैज टू बी लेस देन 84.1, दैट्स व्हाट वी नो. बट A ने क्वालिफाई किया है, मतलब वो ये सारे क्रॉसेस से बड़ा होना चाहिए. सो 82.5 से बड़ा होना चाहिए. सो A स्कोर ग्रेटर देन 82.5 एंड लेस देन 84.1. तो 82.5 से ज़्यादा 84.1 से कम, 82.5 से ज़्यादा 84.1 से कम. आई थिंक ऑप्शन बी शुड बी द आंसर हियर. And last question, by how much did the gold medalist improve his score in the second phase? So we saw that 1.2 का improvement था and gold medalist improved his score twice, so 2.4 से उसने अपना score improve किया होगा, and that's why the correct answer to this question will be option C, that is 2.4. So it was indeed a very difficult set. अगर करना है exam के time पे, I would definitely not recommend you to do it. If you look at the recording, it would have been what, 30-35 minutes till the time we solved it, and this is after knowing the set, after knowing the answers. उसके बाद 30-35 minutes लग रहे हैं. You can only imagine what would have happened during the test. तो ऐसा कुछ टेस्ट क्वेश्चन आता है, सेट आता है टेस्ट के अंदर. दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एट ऑल. तो पूरा इसको छोड़ दो. मे बी 1 or 2 यू कैन गेस. P8 P10 यू माइट बी एबल टू गेस, वो एक क्वेश्चन हो जाएगा. मे बी एक आधा क्वेश्चन और गेस होगा. But beyond that, I don't think it makes any sense for you to attempt this test, attempt this set during the actual test. Now let's look at this set, which is a doable one. So each of the bottles mentioned in this question contains 50 ml of liquid. So 50 ml की एक bottles हैं. The liquid in any bottle can be 100% pure content. P से denote कर रहे हैं. या can, or it can have a certain amount of impurity I. Visually, it is not possible to distinguish between P and I. There is a testing device which detects impurity as long as the percentage of impurity in the content tested is 10% or more. Example दिया हुआ है, suppose bottle 1 contains only P and bottle 2 contains 80% P and 20% impurity. तो क्या होगा? If content from bottle 1 is tested, तो उसमें 10% से ज़्यादा तो impurity है नहीं, तो it will say that it contains only P करके बता देगा वो. If the contents of bottle 2 is tested, then it will show that there is impurity because 10% से ज़्यादा है. If 10 ml of content from bottle 1 is mixed with 20 ml from bottle 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 ml from bottle 1, so 10 ml पूरा का पूरा P है and 20 ml में 80% P है, मतलब 16 ml P है, 4 ml impurity है. So we will have 26 ml out of 30 ml, right? तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा impurity है. So it will show that the mixture has impurity. 10% से ज़्यादा, 10% और more होगा तो impurity दिखा देगा. Hence, we can conclude that at least one of the two bottles has I. Yes, I will not know which bottle has I, but we know that at least one of the two bottles has I. Why? Because we don't know percentage क्या है. ठीक है? Let's see. However, if 10 ml of content from bottle 1 is mixed with 5 ml of content from bottle 2, मतलब क्या हो गया? 10 ml P है first bottle में, 4 ml P है second bottle में, 1 ml P है second bottle, 1 ml I है second bottle में. So 1 out of 15 will be I. Now this is not 10%. तो भाई जो टेस्टिंग डिवाइस है वो बोलेगा ये इसमें तो इम्प्यूरिटी नहीं है करके बताएगा. ठीक है? इट विल नॉट डिटेक्ट एनी इम्प्यूरिटी इन द रिजल्टेंट मिक्सचर. वी कांट से दैट देयर इज नो इम्प्यूरिटी, बट वी कैन से दैट मिक्सचर के अंदर 10% से कम है. Now this is the only information that we have. So let's see what we can do with this. Now 5 ml of content from bottle A is mixed with 5 ml of content from bottle B. The resultant mixture when tested detects the presence of I. तो impurity है करके बता रहा है. So 10 ml में से ना we know that 1 ml तो पक्का impurity है. 1 ml or more than 1 ml, greater than or equal to 1 ml is the impurity का content. That's what we know. If it is known that bottle A contains only P, we know that bottle A contains only P, तो ये 1 ml जो है ना वो अपने को bottle B में से ही मिला होगा, right? Content bottle B का जो 5 ml है उसमें से 1 ml तो पक्का impurity है. So I can say that this greater than 1 ml has been contributed by bottle B. अब bottle B पूरा का पूरा उसमें 1 ml नहीं है. We are saying that 5 ml of content from bottle B contains at least 1 ml of impurities. Bottle B का original content कितना था? 50 ml था. So bottle B will contain how much impurity? It will contain at least 10 ml. तो 10 ml या more होगा bottle B का impurity, because if we take 5 ml out of 50 ml, we are taking 1 ml out of 10 ml at the very least impurity wise अगर देखा जाए तो, and that's why we will be able to say that bottle B contains at least 10 ml of impurity in it. Yeah. So that is the answer to the first question. Now let's look at the next question. Second question के अंदर there are 4 bottles. Each bottle is known to contain only P or only I. या तो only pure solution है या तो only impure solution है. They will be considered to be collectively ready for dispatch if all of them contain only P. सब में P होगा तो ही वो ready for dispatch होंगे.
In minimum, how many tests it is possible to ascertain whether these 4 bottles are collectively ready for dispatch? Let's say एक ही bottle के अंदर impurity है, ठीक है? So then we will get PPPI. एक केस है जहाँ पे all 4 bottles have pure, एक के अंदर exactly 1, one case will be exactly 2, one case will be exactly 3 have impurities, and one case will be all 4 have impurities. ये 5 ही cases बनेंगे पूरे मिला के if you look at it, right? Now what happens here? In this case ना 100% is impurity. अब ये 100% impurity को 4 अलग अलग parts में divide किया तो 25% impurity दिखा देगा. And I cannot take disproportionate amount of liquid from each bottle because फिर पता नहीं चलेगा किसकी वजह से impurity आया है. So I have to go for equal amounts from each bottle. अब यहाँ पे ना 25% impurity दिखा देगा तो एक टेस्ट में पता चल जाएगा that the mixture is the collectively it is not ready for dispatch because there is impurity that is present that is greater than 10%. इसके अंदर 0% दिखाएगा, वो दिखाएगा P. We know that it is collectively ready for dispatch. ये वाले केस में ना 200 divided by 4, 50% impurity, पक्का impurity दिखाएगा. यहाँ पे 3 में so 300, 75% impurity दिखाएगा. यहाँ पे 100% impurity है, तो I दिखाएगा. So in one test we will be able to figure out whether collectively it is ready for dispatch or not, because it will be ready for dispatch only if all of them contain P. राइट सो सिर्फ ये ही केस के अंदर वो डिस्पैच के लिए रेडी होगा. तो एक टेस्ट कर लो, अगर उसमें इम्प्योरिटी दिखाई देता है तो यू नो दैट ऑल ऑफ देम आर डेफिनेटली नॉट प्योर, राइट. एक तो एटलीस्ट एक बॉटल है जहाँ पे इम्प्योरिटी है करके, बिकॉज द टेस्ट विल नॉट टेल यू कि 25% इम्प्योरिटी है, 50% इम्प्योरिटी है, 75%, 100% नहीं बताएगा. इट विल जस्ट टेल यू इम्प्योर है करके. एंड इफ इट शोज इम्प्योरिटी यू नो दैट वन बॉटल में तो गड़बड़ है फॉर श्योर, तो कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच नहीं हो सकता, बिकॉज कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल इफ ऑल ऑफ देम कंटेन ओनली पी. And so using only one test we will be able to figure out whether we are going to be able to collectively dispatch this particular solution or the mixture or all the bottles or not. Now moving on to the next question. There are 4 bottles. It is known that 3 of these bottles contain only P. अपने को पता है that 3 के अंदर ना पक्का pure solution है, and one contains 80% P and 20% I. तो ये 80% है and the remaining are 100% each. What is the minimum number of tests required to definitely identify the bottle containing some amount of I? अभी अपन फिर से ना disproportionate चीज़ें नहीं ले सकते. That's why we will have to take the equal amounts of solution if we are testing them. तो क्या करेंगे इसके अंदर? Now let's say for example हम सारों को ऐड कर देते, चारों को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? 20% impurity will get equally split across 4 bottles. So we are going to get 4%. तो भाई वो तो impure है करके दिखाई नहीं देगा अपने को. It will show that it's a pure solution. So we can't take 4 bottles and see what happens. Is there a better solution? Right? So यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर 3 bottles लेके देखते हैं, let's say for example, right? If you take 3 bottles, then what will happen? Even if one of them is impure ना, 20% 3 bottle में divide हो जाएगा, 6.66% होगा, तो भी अपने को impurity detect नहीं होगा. So now the next best thing is to figure out using 2 bottles. अगर 2 bottles यूज़ करते हैं तो 2 cases बनते हैं. या तो मेरे पास 100% के 2 bottles हैं, या तो 100% 80% के bottles हैं. If 100% और 100% के bottles हैं, I will get my test result to be P. और अगर एक 100 है, एक 80 है, 20% will get split into 2 parts. 10 हो जाएगा, 10% पे भी impurity detect होता है. So it will show me I. So now I can say that अगर मेरे टेस्ट के अंदर I दिखाई देता है, one of those 2 bottles is messed. ठीक है, वो समझ में आ जाएगा. अभी मेरे को मिनिमाइज करना है. See, one way of doing this is test each individual bottle ना, तो 4 iterations में पक्का हो जाना चाहिए. So my answer has to be less than 4 for sure. My answer also has to be greater than 1 for sure, right? So now let's see if we are able to do it in 2 or 3 iterations. So let's say मैंने पहले 2 bottles कोई तो ले लिए, bottle A और bottle B ले लिया, ठीक है. अब इसके अंदर दोनों प्योर थे, तो मेरे को यहाँ पे प्योर मिल जाएगा. Now I need not test A and B individually ना, मेरे को पता है इसके अंदर P है करके. So I will have to test C and D. अभी अगर मैं C और D को साथ में, अगर if I test C with D, I will get impurity उसमें 100% आएगा, but I will not know whether C के अंदर impurity है कि D के अंदर impurity है. So I need to test my impure bottle with a pure bottle. Now because we have got the result of this test as P, we know that A and B are 100% pure ना, तो अपन क्या करेंगे? C के साथ B को combine करके देखेंगे क्या होता है. अगर इसका आंसर P आता है, then we know that C भी प्योर था, तो मेरा आंसर होगा भाई D बॉटल है ना, उसके अंदर I था करके. That is what my answer will be. And अगर C और B को अगर मैं ऐड करके मिक्सचर बनाता हूँ, and now if I get my test का रिजल्ट as I know that B तो प्योर था, तो इम्प्योरिटी कहाँ से आया? C में से इम्प्योरिटी आया. So I will be able to figure it out in 2 steps. चलो दूसरा केस,
ए और बी के अंदर ना यहाँ पे दोनों प्योर थे, एक प्योर और एक इम्प्योर पकड़ के चल लेते हैं. नाउ इन दिस केस वी विल नो फॉर श्योर दैट इसका रिजल्ट जो आएगा ना वो आई ही आने वाला है, बिकॉज 20% इम्प्यूरिटी प्लस 0% इम्प्यूरिटी विल गेट स्प्लिट इक्वली, तो 10-10% हो जाएगा. सो वी विल गेट द आंसर एज आई हियर. नाउ वी नो दैट ए और बी में से ना कोई तो एक बॉटल में गड़बड़ है, बट नाउ वी हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट दैट सी एंड डी आर डेफिनेटली प्योर. सो व्हाट विल यू डू, या तो बी या तो ए कोई भी एक बॉटल ले लो और उसको सी के साथ मिक्स करके देख लेना क्या होता है. If you have mixed something with C and the answer is pure, then you know that this bottle was also pure. And if you have mixed something with C and the answer is impure, then you know that the impurity was because of that bottle. So दो steps के अंदर you will be able to figure out. पहले दो bottles को साथ में equal amounts लेके देख लो, see what the answer is. If the answer is pure, then both the bottles are pure. Take one of them as a benchmark, take one of C or D, mix it and see what happens. अगर उसका आंसर भी प्योर आता है, then D is my impure bottle. और अगर इसका आंसर इम्प्योर आता है देन सी इज माई इम्प्योर बॉटल. केस 2, अगर एक प्योर है एक इम्प्योर है, तुमको फर्स्ट स्टेप में ही आई मिल जाएगा. नाउ यू नो दैट ए या बी में से एक बॉटल है जो इम्प्योर है, सी ले लेना बिकॉज वी नो दैट इज प्योर, उसको ए के साथ मिक्स कर दो. अगर इम्प्योर आता है आंसर तो ए इज द कल्प्रिट, अगर इम्प्योर नहीं आता है प्योर आता है आंसर देन बी इज द कल्प्रिट. तो दो आइट्रेशंस में यू विल बी एबल टू फिगर आउट डेफिनेटली द बॉटल दैट कंटेन्स सम अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट. There are 4 bottles again. It is known that either one or two of these bottles contains only P, contains only P, while the remaining one contains 85% P and 15% impurity. So let's say the bottles are A, B, C, D. We know that one or two of these bottles contain only P. तो अगर one bottle में P है तो बाकी 3 में I हो जाएगा, ठीक है. And if you have 2 bottles containing P, then 2 bottles will also have I. That is what we know here, right? अब अगर I है ना तो ये 15% हो जाएगा और यहाँ पे 15% होगा. We don't have to find out which bottle contains P. You have to read it very carefully. You have to find out the exact number of bottles that contains P. कितने bottles में P है, कौन से bottle में P है, that is not the mandatory criterion, ठीक है. So that is what we know here. So in this particular case, दो ही cases possible हैं. Let's say मैंने यहाँ पे equal amounts ले लिए, then what will happen? 45% will have to be divided among 4 parts, तो 11.25% कुछ आ जाएगा. तो ये पक्का मेरे को आई दिखाने वाला है. और अगर ये करता हूँ तो 30% विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वी आर गोइंग टू गेट इफेक्टिवली 7.5% पर बॉटल. ये मेरे को पी दिखा देगा as a part of the test. So even if I take equal quantities and figure out, if I get the answer as I will say 3 bottles में impurity है और एक बॉटल में pure solution है. And if I get the answer as P, I will say that 2 bottles में impurity है, एक बॉटल में pure solution है. So only one test is sufficient for us to figure out the number of bottles containing P. Right? We don't have to figure out which bottle contains P and which bottle contains I. Read the question very carefully. A lot of people get confused कि अरे कौन सा bottle ढूंढ के निकालना है, तो वो flow में आके they will mark this incorrectly. But the answer to this one will be option A, that is 1. And that is basically the second set that we had. One set was very difficult, one set was manageable. So you always have to pick these kind of sets, although there were fewer questions in this one. But of course you could have got at least 3 out of 4 right if you would have missed the trap in the last one. But फिर भी 3 out of 4 is a very good return on investment if you look at the amount of time that you would have spent on this particular set.